بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن اور بند گوبھی۔ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں اسے بناؤں گی۔ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک کڑھائی، جس میں نے ڈالا ہے 1 کپ آئل۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے تقریباً 2 عدد کٹی ہوئی پیاز۔ یہ میرے پاس 2 عدد پیاز ہیں، باریک کٹی ہوئی، میڈیم سائز کی، جنہیں میں فرائی کروں گی۔ تو یہ دیکھیں پیاز فرائی ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 1 چمچ ادرک اور لہسن کو کٹا ہوا ادرک اور لہسن 1 چمچ کے برابر ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً 1 منٹ ادرک اور لہسن کو بھون لیں گے تاکہ لہسن کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ میڈیم آنچ پہ ادرک اور لہسن کو بھونیں گے۔ تو یہ دیکھیں ادرک اور لہسن کی بھنائی ہو چکی ہے، 1 منٹ ہو گیا مجھے اسے بھونتے ہوئے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن میرے پاس تھا ایک پوری مرغی۔ تو مرغی کا سائز کبھی چھوٹا بھی ہوتا ہے کبھی بڑا بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنے حساب سے چکن لیجئے۔ میرے پاس تقریباً اندازے سے جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زائد تھا، تقریباً 1.25 کلو کے قریب میرے پاس چکن تھا۔ چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مجھے تھوڑا چکن کم لگ رہا تھا تو میں نے 2-3 پیس چکن کے اور اس میں ایڈ کیے ہیں۔ اس طرح سے ہم چکن کی 1-2 منٹ کے لیے بھنائی کریں گے۔ چکن کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ ہلکا سا کلر چکن کا چینج ہو چکا ہے، تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی مسالے۔ یہ میرے پاس میجرمنٹ والا چمچ ہے، تو آپ دیکھیں 2 چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نمک کم ہو گیا تھا تو میں نے 1 چمچ بعد میں بھی ایڈ کیا ہے۔ یعنی اگر آپ اسی کوانٹی میں بنانا چاہتے ہیں جس کوانٹی میں بنا رہی ہوں، تو پھر آپ 1.25 کلو چکن میں آپ نے 3 چمچ بھرے ہوئے نمک کے آپ نے ڈالنے ہیں۔ اس کے بعد باقی مسالے یہ آپ دیکھیں 1.5 چمچ تقریباً میں اس میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاؤڈر، اور 1.5 چمچ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی لال مرچوں کا پاؤڈر۔ یہ آپ دیکھیں لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، اور یہ ہے میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ، یعنی دھڑا لال مرچ، دادڑ لال مرچ، جو بھی آپ اسے بولتے ہیں۔ 1.5 چمچ ہی میں نے دونوں مرچیں ڈالی ہیں۔ یہ ہے میرے پاس خشک دھنیا پسا ہوا، یعنی کہ خشک دھنیا کا پاؤڈر، 1 چمچ میں نے خشک دھنیا کا پاؤڈر ڈالا ہے۔ اور اب میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ سفید زیرہ بھنا اور کٹا ہوا۔ اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جب تک چکن کی بھنائی ہوگی مسالے اس میں اچھی طرح سارے جذب ہو جائیں گے، چکن کے اندر تک مسالوں کا ٹیسٹ چلا جائے گا، تو اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ کچھ ڈشز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں صرف نمک ڈال کے چکن کو فرائی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں سارے مسالے ساتھ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ فل ٹائم اسپائسی ڈش تیار ہوگی۔
तो ये देखें मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स किए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। 3 अदद मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने दरमियान से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। 3 टमाटर हैं तो ये 6 पीस इसके ऐसे कढ़ाई में रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। तो चले आएँ, अब तकरीबन 15 से 18 मिनट तक हम वेट करेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते और उनका छिलका ऊपर से अलग नहीं हो जाता। तो ये देखिए मुझे तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा ढकना उतार के देखते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इनका छिलका ऊपर से उतार लेंगे एक चिमटे की मदद से। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ही आसानी से ये टमाटर इस तरह से गल जाता है और ऊपर से इसका छिलका अलग हो जाता है। एक एक करके हम सारे टमाटरों से उनके छिलके उतार लेंगे। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये देखें टमाटर हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 गिलास सादा पानी। आपको पता है कि चिकन बनाते वक्त चिकन अपना भी कुछ पानी छोड़ता है और जो टमाटर होते हैं उनका भी कुछ पानी खाने में जो है वो अपने टमाटरों का अपना पानी भी होता है और चिकन का भी, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। सिर्फ 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है और ऊपर से अब मैंने कवर कर चुकी हूँ। तो चले आए, अब हम गोश्त गलने का इंतज़ार करते हैं। चिकन हमारा 90% जब गल जाएगा तो फिर हम दोबारा से इसे खोलेंगे। तो ये देखें एक दफ़ा से चेक करते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन हमारा 90% तकरीबन गल चुका है। मसाले इसके अंदर तक जज़ब हो चुके हैं और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं हुआ और जितना हमें चाहिए था बिल्कुल उतना ही है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का जो बंद गोभी का फूल होता है वो मैंने लिया था, जिसे मैंने काट के धो के रख लिया था। तो ये देखें कटी हुई और धुली हुई साफ़ सुथरी बंद गोभी, अब मैं उसे इसमें ऐड करूँगी। जी, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है उसकी बोटियां टूटने ना पाएँ। तो ये देखिए इसे मिक्स करने के बाद चमचा निकाल के साइड पे रख लेंगे और फिर से इसे ऊपर से कवर कर देंगे। और गोभी डालने के बाद आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो चिकन में पानी था बंद गोभी उसी में गल जाएगी, इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसे मीडियम से लो आंच पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारी गोभी गल नहीं जाती और जो चिकन 90% था वो हमारा फुल कुक हो जाएगा जब तक हमारी गोभी सही पकेगी। तो ये देखें एक दफ़ा इसे चेक करते हैं।
देखिए माशाल्लाह गोभी हमारी गल चुकी है। इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और ये देखें आप बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन भी गला है और गोभी जो है वो भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें बार बार चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी गल चुकी हैं। तो थोड़ी सी अब हम इसकी आंच, मैं इसकी आंच तेज़ कर रही हूँ। तो आप देखें थोड़ी देर तक जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, इसकी हल्के हाथों थोड़ा थोड़ा हिला के इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखिए बुनाई हमारी हो चुकी है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो, यानी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये आपने पहले मसाले में नहीं डालनी, ये सबसे आखिर में ही आप डालेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद चमचा निकाल के अलग कर लूँगी और फ्लेम कर देंगे ऑफ। गोभी हमारी रेडी है, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी बुनाई हुई है। चिकन की कुछ बुनाई पहले की थी हमने और कुछ अभी गोभी के साथ इसकी बुनाई हो चुकी है। तो देखिए चमचा अलग से निकाल के बाहर रखा है और फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ मिर्च मैंने इसके मसाले में ऐड नहीं थी कि वो मैंने गार्निश के लिए रखी थी। इस तरह ये बहुत ही स्पाइसी किस्म की बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखें बंद गोभी और चिकन की कढ़ाई हमारी रेडी है। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही स्पाइसी है। तकरीबन 1.25 किलो मेरे पास चिकन था और एक मीडियम साइज़ का बंद गोभी का फूल था। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।